خوش آمدید دوستوں، میں ہوں ابتسام زاہد اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک متوسط مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی ذہنی طور پر کمزور تھا جبکہ چھوٹا ہوشیار تھا اور وہ کاروبار کرتا تھا۔ والد صاحب انجینئر تھے۔ پہلے پاکستان میں ملازمت کرتے تھے مگر تنخواہ کم تھی، لہٰذا کمانے کو سعودی عرب چلے گئے۔ وہ وہاں کافی سال رہے اور کما کر پیسے وطن بھیجتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسودہ حالی نصیب ہوئی اور طرز زندگی بھی بہتر ہوا۔ پہلے وہ تعطیل پر آتے تھے اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب ہر سال ہمیں سعودیہ بلانے لگے۔ ہم اس دن کا انتظار کرتے تھے کیونکہ سعودیہ جا کر ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور والدہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے، تاہم والد صاحب وطن نہیں آ پاتے تھے کہ بیماری میں میری اماں اور بڑے بھائی کی دیکھ بھال کرنا پڑتی، ملازمت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ کمانے کی خاطر ہی پردیس گئے تھے۔ پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا بلکہ وہاں گھر بار سے دوری کے باعث زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مسلسل ذہن دباؤ میں رہتا ہے۔ کبھی والد صاحب بھی پردیس کی سختیاں سہتے ہوئے ایک روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو ریاض میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زندہ گھر نہ واپس آ سکے۔ اس صدمے کو اماں جان نے دل پر لیا اور وہ بھی جلد اپنے خالق سے جا ملی۔ اب گھر میں اور 2 بھائی رہ گئے، ایک تو ذہنی معذور تھا اور دوسرا اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں میں ایم اے سال اول میں تھی اور یونیورسٹی جاتی تھی، جبکہ ہماری پرانی ملازمہ گھر سنبھالتی تھی۔ یونیورسٹی جا کر میں خوش تھی کیونکہ یہاں دل بہل گیا تھا۔ 3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھیں اور گھریلو پریشانیوں کو ان کی باتیں کچھ دیر کے لیے بھلا دیتی ہیں۔ پہلا سال اچھا گزرا تھا اور ایم اے سال اول کا آج آخری پرچہ تھا۔ امتحان کے بعد پارٹی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ پارٹی کے دن جب گھر واپس آ رہی تھی، اچانک عاطف سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ عاطف میری اماں کی سہیلی کا بیٹا تھا اور ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ان کا بنگلہ تھا۔ ان کی اماں اکثر میری والدہ کے پاس آتی تھیں اور عاطف بھی ساتھ آیا کرتا تھا۔ یوں میری اس کے ساتھ بچپن سے دوستی تھی، بلکہ لگاؤ کہنا چاہیے۔ ہمارے درمیان اجنبیت بھی نہ تھی کیونکہ برسوں کا ایک دوسرے کے گھروں آنا جانا تھا۔ ہم ایک فیملی کے افراد جیسے تھے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور کہا کہ تم کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں بھی بلا تعمل اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا۔ انکار کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اس کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ جتنی میں خوش تھی، عاطف اس سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ گاڑی میں میوزک لگا ہوا تھا جو ہمارے دلوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ عاطف نے مجھے گھر ڈراپ کیا تو میں نے کہا، عاطف گھر بھی آ جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، کسی دن ضرور آؤں گا، آج ایک دوست کے ہاں جانا ہے۔ اگلے دن میرے سیل پر SMS تھا، اوپن کیا تو عاطف کا میسج تھا۔ اس نے اچھی خواہشات کا اظہار کیا تھا جس پر میں مسکرا رہی تھی۔ بہرحال اس میسج سے مجھے خوشی ہوئی، جیسے یہ کوئی تازہ جھونکا ہو۔ کچھ دنوں بعد نوشین کا فون آیا کہ یونیورسٹی رزلٹ کا پتہ کرنے چلتے ہیں۔ دوسرے روز ہم یونیورسٹی گئے، وہاں مجھ کو بابر نے چونکا دیا کہ وہ بھی رزلٹ پتہ کرنے آیا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میری دوست نوشین کی ملی بھگت ہے، ورنہ یہ کیوں آج آیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ لڑکا اکثر مجھ کو دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قریب آیا، جیسے بات کرنا چاہتا ہے مگر پھر بات نہ کر سکا۔ میں جان گئی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے مگر بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں، بس دور دور سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے توجہ نوشین کی طرف دلائی تو اس نے کہا، غازیہ اس سے بات کر کے دیکھو، آخر کیا چاہتا ہے۔ رہنے دو، مجھے بات نہیں کرنی۔ تبھی وہ بولی، ارے بھائی یہ انسان ہے، کوئی جن بھوت تو نہیں، آخر بات کر لینے میں کیا حرج ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تو اس نے ایک نمبر مجھ کو دیا اور کہا، فون پر بات کر لینا، لیکن پھر اسی وقت اس نے خود ہی اپنے سیل پر یہ نمبر ملا دیا۔ پہلے مجھے دیا۔ میں نے کہا کہ تم خود بات کرو۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا تو نوشین نے پوچھا، کیا حال ہے، اتنے دن کہاں تھے؟ بولا، ملتان گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں اور یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ تبھی نوشین نے فون مجھے دیا کہ لو بات کر لو۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ بولا، بابر۔ کیوں ہمیں گھورتے ہیں؟ اس سوال پر ہم دونوں پھر خود ہی ہنسنے لگی۔
वो समझा कि मजाक उड़ाने को मुझे फोन किया है। उसने फोन बंद कर दिया। वापसी पर नौशीन के घर चली आई तो वहां फिर उसकी कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा, वो समझा नौशीन है। कहने लगा, अब की सहेली मेरा मजाक उड़ा रही थी क्या, इसीलिए इनको अपने फोन मिला कर दिया था? वो हंस कर कहने लगी, मजाक नहीं उड़ा रही थी, तुमसे कुछ पूछ रही थी, जवाब दे दो। ये कहकर इसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो बोला, अच्छी सूरत को सभी देखते हैं, मैंने देखा तो क्या गुनाह किया? अच्छा खैर मुआफ किया, आइंदा नहीं देखना। अच्छा आइंदा नहीं देखूंगा, अब नजर आएंगी तो आंखें बंद कर लूंगा। वो काफी बजला संज था। मुझे इसका जवाब बुरा नहीं लगा, ताहम मैंने फोन बंद कर दिया। शाम को मैं घर में बैठी थी और चाय पी रही थी कि मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला, मैं हूं बाबर, मेरी कॉल पर अब नाराज तो नहीं है? नहीं कहो क्या कहना चाहते हो? मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खूब, मैंने कहा तुम अपनी आंखें खुली रखो तो बेहतर है। बहरहाल इसके बाद हमारी फोन पर बातें होने लगी, क्योंकि वो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करता था कि इसकी बातें सुनकर दिमाग मुअत्तर हो जाता था। अब यूनिवर्सिटी खुल गई थी और खाली पीरियड में अक्सर में नौशीन और बाबर इकट्ठे होते। हम चाय वगैरह भी इकट्ठे पीते थे। एक दिन नौशीन ना आई तो उसकी गैर मौजूदगी में बाबर कहने लगा, गाजिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था और काफी दिनों से इरादा करके रह जाता हूं। जी करता है आज कह दूं? कह दो, मैंने भी शान बेनियाजी से कहा। गाजिया सुनो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मानी रखती हो और मैं तुमको अपना जीवन साथी देखना चाहता हूं। ये एक जायज ख्वाहिश है, उम्मीद है तुम इस इजहार पर बुरा ना मानोगी। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि तुम मुझको अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं चुप रही तो वो कहने लगा, गाजिया, अपना हाथ आगे करो। मैंने जब हाथ आगे किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बे-इख्तियार मेरी जबान से निकला, बस बाबर, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और अपना हाथ खींच लिया। मैं चल दी तो इसने आवाज दी, गाजिया रुक जाओ, साथ चलते हैं। मैं ठहर गई और हम साथ बाहर आए। वो कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर छोड़ देता हूं। जब मैं घर पहुंची तो परेशान और सहमी हुई थी, क्योंकि बाबर ने इजहार मोहब्बत कर दिया था। अब इसके साथ रहना मानी रखता था और उसको छोड़ देने से वो रंजीदा होता। सोच रही थी क्या करूं, परेशान थी, और इस परेशानी में फिर आतिफ याद आया। बार बार उसकी याद जहन के उफक पर मंडलाने लगी। खुदा की करनी इसी वक्त आतिफ का फोन आ गया। बोला, इतने दिन हो गए गाजिया तुम मिली हो और ना फोन किया है? मैं पढ़ाई में मसरूफ थी आतिफ। मैंने कहा, जिस रोज ततील होगी तुम घर आ जाना, भैया भी होंगे, हमारे साथ खाना खाना। फिर मैंने ज्यादा बात ना की, फोन बंद कर दिया, मगर दिल बेताब रहा कि क्यों फोन जल्दी बंद कर दिया। क्या बाबर की वजह से? तभी सोचा कि बाबर को तो मैं जानती नहीं, जबकि आतिफ बचपन का साथी है और उन लोगों को हमारे घर वाले न सिर्फ जानते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। मेरे लिए यकीनन आतिफ ही बेहतर रहेगा। मुझे बाबर से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब अपना इरादा जाहिर कर चुका है। अगले रोज यूनिवर्सिटी आई तो वो मुंतजिर था। आतिफ की वजह से मैं इससे किनारा करना चाहती थी, मगर ख्याल आया कि एक बार बाबर से बात करके इसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाना चाहिए, वरना वो किसी झूठी आस में रहेगा। हकीकत ये थी कि वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ, मुहज्जब और खूबसूरत इंसान था। अगर मेरे दिल में पहले से आतिफ का ख्याल ना होता तो मैं जरूर बाबर को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम कर लेती। अब मुझे कहना ही पड़ा कि बाबर, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, लिहाजा क्यों ना हम अलग रहे। वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती तो तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती तो मुझसे बात न करती, ये तुम्हारा हक था। मैं तुमको कभी मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने बात की और मेरी मुराद बराई। अब तुम चाहो तो मुझसे मिलो, चाहो ना मिलो, मेरे दिल में जो मकाम तुम्हारा है वो हमेशा रहेगा, इसको तुम नहीं छीन सकती। ये बातें कुछ इस तरह दुख से इसने कहीं कि मेरा दिल भी मोम हो गया और मैंने फैसला किया कि बाबर से मिलूंगी, बात भी करूंगी। जब सालाना इम्तिहान हो जाएंगे, हमारे बात करने का सिलसिला अज खुद मुनक़ते हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा और हम इकट्ठे होते, बात करते। यूं वक्त के साथ साथ इसकी जगह मेरे दिल में बनती गई और बाबर मुझे अच्छा लगने लगा।
मगर मेरे जहन से आतिफ का ख्याल भी न गया, गोया अब मैं ज़हनी तौर पर 2 कश्तियों में सवार थी और अपने अंजाम से बेखबर थी। एक दिन आतिफ घर आया तो उसने भी यही बात कही कि गाजिया तुम्हारे इम्तिहान होले फिर अम्मा तुम्हारे भाई से रिश्ता तलब करेंगी। उम्मीद है तुम्हारी बहनें और भाई इनकार न करेंगे। इसकी बात सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गई। उसने मेरी परेशानी को भांप लिया और पूछा, सच बताओ, क्या बात है कि तुम मेरी गुफ्तगू सुनकर खुश होने की जगह परेशान हो गई हो? मैंने टालना चाहा मगर वो नहीं टला, बल्कि कहने लगा कि सच बता दो वरना मैं भी परेशान रहूंगा और आइंदा तुमसे भी बात न करूंगा। इस पर मुझे बताना ही पड़ा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसका नाम बाबर है। वो मुझसे बात करता है और मैं चाहती हूं कि इससे बात ना करूं। आतिफ ने कहा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, तो फिर ऐसा करो, अगर वो तुमको अच्छा लगता है तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, आतिफ अगर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं उसको अपना लेती और तुमसे बात न करती। वो मुझे पसंद नहीं है। अगर इसको मैं पसंद हूं तो ये उसका मामला है और किसी के दिल पर उसका इख्तियार होता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो बात क्यों की? मुझे खबर ना थी कि इसके दिल में क्या है, इसलिए बात कर ली थी, मगर अब ना करूंगी। वो कहने लगा, आज अच्छी तरह फैसला कर लो कि तुमने किससे वास्ता रखना है और किससे नहीं रखना है। बेहतर तो यह है कि इसी से वास्ता रखो और मुझे छोड़ दो कि वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है। जब इसने ये कहा, मुझे यूं लगा जैसे मैंने आतिफ को नहीं किसी बड़े खजाने को खो दिया है। मैं रोने लगी और तभी आतिफ को उसकी अहमियत का एहसास दिलाने लगी। मैंने इससे मुआफी भी मांगी और बाबर से ना मिलने का अहद किया तो आतिफ नर्म पड़ गया। कहा, अच्छा ठीक है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं और मेरी मां बरसों से तुमको बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। यही तुम्हारी मरहूमा मां की ख्वाहिश भी थी और मुझको आंटी मरहूमा की आरजू का पास है कि मेरी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हफ्ता भर यूनिवर्सिटी न गई कि जाऊंगी तो बाबर से सामना होगा। वो वालिहाना मेरी जानिब बढ़ेगा और मुझसे बात करेगा तो मैं अचानक कैसे इसको धचका लगाऊं कि मुझसे बात मत करो। इसी सोच में थी कि बाबर का फोन आ गया। कहा कि क्यों नहीं आ रही हो, खैर तो है? मेरा तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजरता, हर तरफ तुम नजर आती हो। अब मैं एक रोज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आऊंगा। इसकी बातें सुनकर मैं सुन हो गई। अल्लाह, ये क्या कि एक तरफ मैंने आतिफ से शादी का अहद कर लिया है और वो भी संजीदा है। इसके और मेरे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं और उधर इस दीवाने का ये हाल है कि वो मेरे घर आना चाहता है। मैं शदीद ज़हनी दबाव और कशमकश का शिकार हो गई थी कि मैं अब दोनों ही का सामना नहीं कर सकती थी। मैंने दोनों से राब्ता न किया तो आतिफ मेरे घर आ गया और शिकवे करने लगा कि मैं क्यों इससे बात नहीं करती, इसको फोन भी नहीं कर रही। ये बातें मेरे भाई ने सुन ली। इसको बुरा लगा और उसने आतिफ की बहन को फोन करके कहा, शादी एक अलग मसला है, मगर शादी से पहले इस तरह घर आकर मेरी बहन से तुम्हारा भाई बेतकल्लुफ हो, हमें पसंद नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, तुम उसको समझाओ वरना हम इसको अपनी बहन का रिश्ता ना देंगे। इस पर आतिफ की बहन बोली, भैया, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम उनकी मंगनी कर दी, फिर जब गाजिया के सालाना इम्तिहान हो जाएंगे तो हम शादी की तारीख रख लेंगे। मेरे भाई ने रुकया को कहा कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब तक वो कमाता नहीं, शादी कैसे होगी? ठीक है, मैं आतिफ को समझाऊंगी कि वो कुछ काम करे, रुकया ने जवाब दिया। उन्हीं दिनों बाजी आई। मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आसमा है, उन्होंने मुझे कहा कि गाजिया बेहतर है तुम आतिफ से राब्ता ना रखो, क्योंकि कोई भाई ऐसे लड़के से अपनी बहन का रिश्ता ना करेगा कि जिसका कोई करियर ना हो। रात को मैंने फोन करके आतिफ को ये सारी बातें कही। वो बोला कि क्या कमी है हम में, हम खुशहाल और पढ़े लिखे लोग हैं, जब वक्त आएगा मैं कमाने भी लगूंगा। आतिफ को मेरी बातें सुनकर गुस्सा भी आया। कहा कि क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाई को मुझसे, आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेहतर है कि तुम अपनी बहनों से बात करो, अगर वो राजी हों तो हम मंगनी कर लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है आतिफ, भाई की रजा के बगैर हमारी मंगनी नहीं हो सकती। वो मायूस होकर बोला, गाजिया तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? ये दुनिया हमें इकट्ठे जीने देती है और ना इकट्ठे मरने देती। मैंने कहा, यही प्यार का दस्तूर है, तुम कुछ बनकर इज्जत से मेरा हाथ मांगोगे तभी हमको सच्ची खुशियां मिल सकेंगी, लिहाजा अपना वक्त मत जाय करो और कुछ काम करने की सोचो।
आतिफ ने BA किया था। इसको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो खामोश रहा, लेकिन अब वो खामोश नहीं बैठ सकता था। एक बार फिर वो मुलाजमत के लिए सरगर्दा हुआ। जब कहीं बात ना बनी तब इसने बाहर जाने का सोचा कि वहां जाकर कुछ कमा लूं। वो सऊदी अरब चला गया क्योंकि इसके बड़े भाई भी वहां थे। इसके जाने के बाद कुछ दिन में उदास रही, फिर उसका ख्याल भला कर मैं बाबर से पहले की तरह मिलने और बात करने लगी। वो कहता था, गाजिया मैं चाहता हूं कि जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं। वो ऐसी लच्छेदार बातें करता कि मैं उसकी बातों के सिहर में खो जाती थी। मैं बाबर के खानदान के बारे में तो नहीं जानती थी, अलबत्ता आतिफ की तरफ से दिल मुतमईन था। वो अच्छे खानदान से था और उसके घर वाले सब हमको जानते थे। वो भी अच्छे लोग थे, लेकिन अब मामला सिर्फ आतिफ की वजह से उलझ गया था कि वो बैरून मुल्क चला गया था। आंख ओझल पहाड़ ओझल। तभी मैं एक बार फिर बाबर के बारे में सोचने लगी थी कि शायद ये ही मेरे हक में बेहतर हो। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज बाबर से कहूंगी, अगर तुम वाकई मुझसे शादी के लिए संजीदा हो तो अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो। मैंने जब इससे बात की तो वो बोला, आज तुम मुझसे यूनिवर्सिटी से बाहर मिलो, मैं तुमको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूं। मैं इसके साथ चली गई। वो मुझको एक रेस्टोरेंट ले गया जहां हमने खाना खाया और फिर इसने एक खूबसूरत डब्बा निकाला जिसमें जेवरात थे। उसने अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी और कहा कि अब ये नेकलेस और ब्रेसलेट भी पहनो। मैंने कहा, तुम क्यों इतने कीमती तोहफे लाए हो? कहा कि ये मेरी खुशी है। फिर नेकलेस पहनने पर बहुत इसरार किया तो मैंने पहन लिया और कलाई पर उसने ब्रेसलेट भी पहनाया। जब मैंने मना किया तो कहा कि अगर नहीं पहनूंगी तो मैं उनको फेंक देता हूं। इम्तिहान खत्म हो गए तो हमने यूनिवर्सिटी को खैरबाद कहा और फिर मेरा काफी दिनों तक बाबर से राब्ता ना हो सका। उन्हीं दिनों आतिफ की अम्मा हमारे घर आई और मेरा रिश्ता बाकायदा तलब किया, क्योंकि अब आतिफ सऊदी अरब में बहुत अच्छा कमा रहा था। उसने मेरे भाई की शर्त पूरी कर दी थी। घर वाले मेरी आतिफ से जल्द शादी करना चाह रहे थे और मैं अभी तक गोमगू में थी कि क्या फैसला करूं। बाबर का फोन आया। कहा कि फोन क्यों नहीं करती हो, जबकि मेरा जी चाहता है कि सारा दिन तुमसे बातें करूं और हमारी बातें भी खत्म ना हो। और बताओ मेरे गिफ्ट तुमको कैसे लगे? मैंने कहा कि मैं रोज उनको देखती हूं और खुश होती हूं, मगर बाबर एक बात तुम्हें बतानी है और वो ये है कि कहीं ये गिफ्ट मुझको वापस न करने पड़ी। अभी ये बात मैं कर रही थी कि भाई आ गए और मैंने फोन बंद कर दिया। अगले रोज यूनिवर्सिटी गई, बाबर भी आया था। कहने लगा, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। इस पर मैं परेशान हो गई और मैंने इसको कहा, बाबर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। वो इसरार करने लगा कि ज्यादा देर ना बैठेंगे और जल्द आ जाएंगे। तब मैंने कहा कि मुझे अपनी दोस्तों को बताने दो, क्योंकि हमने साथ वापस जाना था और अब वो मेरा इंतजार करेंगी। मैंने नौशीन से कहा कि मैं बाबर के साथ जा रही हूं, ये मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देगा, तुम लोग चली जाना और मेरा इंतजार मत करना। हम रेस्टोरेंट गए, खाना खाया। इतने में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जो बाबर के नंबर से एक रोज कबल भेजा गया था। मैंने इसके सामने पढ़ा। लिखा था, बाबर आपके साथ संजीदा नहीं है, वो बहुत जल्द आपको छोड़ देगा क्योंकि वो शादीशुदा है और अब बाद में बहुत पछताएंगी। मैं आपका खैर खां हूं। मैंने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया और जब बाबर ने ये SMS पढ़ा तो वो सोच में डूब गया। मैंने पूछा कि ये आपके मोबाइल से आया है, किसने किया है और क्यों किया है? वो इस बात का भी जवाब ना दे सका। मैंने कहा, मैं ये सोच रही हूं कि शायद आपने खुद किया है ताकि मेरा रद्दे अमल देख सके। ये भी हो सकता है किसी ने शरारत की हो और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ये सच हो। इस पर कहा कि नहीं, तुम्हारी तीसरी बात ठीक नहीं है। अब वो ऐसे चुप था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। इसकी सारी शोखी खत्म हो चुकी थी। तभी मैं हैरान थी कि मैंने तो इस मैसेज को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, बाबर ने क्यों इस कदर असर लिया है। इस मुलाकात के बाद 10 रोज तक बाबर ने राब्ता न किया। मैंने ही फोन किया तो इसके दोस्त ने रिसीव किया और बताया कि ये मोबाइल मेरा है, बाबर ने मांगा हुआ था और मैंने ही आपको वो मैसेज किया था। बाबर मुल्तान चला गया है क्योंकि उसकी बीवी ने एक फर्जंद को जन्म दिया है और वो अस्पताल में है। वो मेरा मोबाइल घर ना ले जा सकता था, लिहाजा मुझे वापस कर गया है। तभी मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरा एक बार इससे राब्ता हो जाए ताकि मैं इसको ये कह सकूं कि बाबर तुमने जो किया बहुत बुरा किया। ऐसा धोखा किसी और से फिर मत करना वरना अपने रब को नाराज कर लोगे।
क्योंकि धोखाधड़ी अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। उन्हीं दिनों आतिफ सऊदी अरब से आ गया, इसके भाई भी साथ आए थे। उन्होंने मंगनी की रस्म करनी थी, वो हो गई। इसके हफ्ता बाद हमारी शादी हो गई क्योंकि आतिफ को वापस जल्द जाना था। वो मुझको पाकर बहुत खुश था। खुश तो मैं भी थी लेकिन दिल में शर्मिंदा थी और खुदा की शुक्रगुजार भी कि इसने मुझे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा लिया था। अगर बाबर का दोस्त बरवक्त मुझको खबरदार न करता तो यकीनन मैं आतिफ की बजाय बाबर के हक में फैसला कर लेती और उसके बाद आतिफ को खोकर एक शादीशुदा मर्द के चुंगल में फंस जाती तो सारी उम्र पछताती रह जाती। यूं शादीशुदा मर्द लड़कियों की जिंदगियां खराब करते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता मगर लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आतिफ मुझसे मुखलिस था, इसलिए खुदा ने इसका इखलास पसंद किया जिसका इनाम मुझे भी मिला और आज मैं इसके साथ एक खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूं। खुदा हर लड़की को ऐसी गलती से बचाए जो मुझसे सरजद होने वाली थी। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।